Hello, my dear students. After Saturday and Sunday, I once again, Kirit Karya, your account mate, welcomes you on YouTube channel Sum Edu. Friends, we are in lesson number 2, partners final accounts, partnership final accounts. And friends, we are learning the stage of adjustments. I'm sure that in the last period we have studied about the 7 adjustments, and the last one was interest on drawings. So friends, let's start the journey. All right, I hope that you all are well, staying safe, staying home along with your families, and we are determined, all right, and decided to work on accountancy and making our fundamental very strong. So friends, let's start the 8th adjustment. We are in the journey of adjustments. Are you there? Yes, friends. So, after interest on drawings, now we are going to learn about the adjustments regarding depreciation. My dear students, depreciation we all are well aware, but I am not expecting anything from you. I am explaining everything to you. Okay, this is my fundamental while I am teaching to my students. Clear? So now friends, what is depreciation? Depreciation is a constant and gradual reduction. Constant and gradual reduction in the value of the fixed assets that we are utilizing in our business. Now friends, this reduction is what? Our expense. That's why, what to do with an expense? Debit. So depreciation account debit, because it's an expense. 2. Credit to, it is reduction in the value of assets. So asset is always having debit balance, and the value reduced means it's the opposite effect. Credit effect will be given. So 2 dash, here you have to name down the asset on which the depreciation is applicable. So to asset account credit, because the value reduced. So the adjustment entry is depreciation account debit to asset account credit. The first effect on debit side of trading account, profit and loss account. Why on debit side of trading account? If you are utilizing the asset for production purpose, like factory machineries or anything else which is directly used for manufacturing, so such depreciation on assets will be debited to trading account, as we do remember that all the manufacturing expenses are closed to trading account. Okay, now friends, the rest of the assets which we are using for our normal purpose of the business, that is closed and debited to profit and loss account. This is the first one. The second effect is on asset side, deduct from respective asset. Okay, so this is the entry for depreciation. Please do write very quickly. Now my dear students, after that the 9th one is bad debts. जब भी दोस्तों साल पूरा हो रहा है on 31st March, businessmen check the list of debtors. तो कई डेटर्स उनको ऐसे मिलते हैं जो काफी सालों से वो पैसा पे नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं डिफरेंट बुक्स में. एवरी ईयर वी balance carry forward and next year we brought down, but we are not receiving money. So businessmen
himself or herself decides to write off certain receivables. This is the way bad debts occurs at the end of year. कई बच्चों को ये सवाल रहता है मन में, सर साल के अंतिम दिन ही डेटर्स मना कर देंगे, पैसा नहीं देंगे? नहीं, साल के अंतिम दिन जो भी ये बैड डेट्स जनरेट होती है, दैट इज रिटन ऑफ बाय बिजनेसमैन हिमसेल्फ. तो बैड डेट है, ओके. इफ कस्टमर डिनाई एंड वी राइट ऑफ, और वी ourselves decide and we write off, it's a bad debt. So entry for bad debts, very casual, we all know. Bad debts account debit to debtors account credit. It's a loss or expense. And why debtors credit? Because it reduces. डेटर्स की डेबिट बैलेंस होती है, अगर उसको हम रिड्यूस करें तो ऑपोजिट इफेक्ट देंगे, दैट इज क्रेडिट इफेक्ट. नाउ फर्स्ट इफेक्ट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सेकेंड ऑन असेट साइड. ओके, यू हैव टू डिडक्ट from debtors. Allowing you friends 1 minute to write down everything. We just erase this and move to the next screen. Adjustment number 10. Should I erase, friends? Yes. Now we will move to the next adjustment number 10. Now adjustment number 10 and adjustment number 11 you all have to understand with very very great care and concentration. So now adjustment number 10. It's bad debt reserve. Or it is termed as provision for doubtful debts. ठीक है दोस्तों, पहले हम प्रोविजन का बेहतरीन अर्थ समझ लें. प्रोविजन का मतलब यह होता है एज पर द प्रिंसिपल ऑफ विजडम, या डहापन जिसको हम कहते हैं. क्या करना है आपको, जब भी आने वाले समय में कोई भी खर्च होगा ऐसा दिख रहा है, या कोई भी लॉस होगा ऐसा दिख रहा है, तो आने वाले समय के इस खर्च या इस लॉस के लिए आपको वर्तमान समय में क्या करना चाहिए, इतनी अमाउंट अलग रख देनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड अ प्रोविजन. आज दोस्तों मैं एक बात अच्छे से आपसे शेयर करूं कि हमारे देश में, भारत में, खास करके हमारे जो एक सांस्कृतिक हमारी जो धरोहर चली रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, साल का पूरा ग्रोसरी मेजॉरिटी, गेहूं है, चावल है, ऑयल है, सारे पल्सेस हैं, सारे स्पाइसेस हैं, वो साल के ऑलमोस्ट अपने घर में प्रोविजन करके रख देते हैं. ये विजनरी प्रोसेस है कि कोई भी बुरा वक्त आए तो समस्या ना हो.
देखा आपने, ये प्रोविजन है। इसलिए भारत के हर घर में ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ एक स्टोर रूम तो होगा ही, जहाँ साल भर के ये सारे सामान इकट्ठे होकर पड़े रहते हैं, संभाल के रखते हैं, लोग इसके पीछे मेहनत भी करते हैं, है ना। तो दिस इज व्हाट प्रोविजन। तो आपको दिख रहा है कि भाई ये जो डेटर्स आपके हैं उसमें से चंद परसेंट, मान लो 5%, 1 लाख के डेटर्स है, 5%, 5,000 रुपया, ऐसा दिख रहा है कि आने वाले साल में शायद ये 5,000 का जो डेटर है ना वो पैसा देगा नहीं, मतलब यू हैव अ डाउट, दीज डेटर्स आर योर डाउटफुल डेटर्स। तो इफ यू हैव अ डाउट दैट ये 5,000 रुपए का लॉस आने वाले समय में हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ बैड डेट्स, यू कीप दैट 5,000 असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट। मतलब आपका जो प्रॉफिट है उसमें से 5,000 रुपया आप एक तरफ रख दो, तो प्रॉफिट क्या हुआ, कम हो गया ना। जैसे हम खर्च करते हैं तो प्रॉफिट कम होता है, वैसे ही ऐसे कम हो गया, हमने प्रोविजन की। तो क्या करना चाहिए, प्रॉफिट एंड loss account debit, because profit reduces, आपका प्रॉफिट कम हो रहा है ना, क्योंकि आप इतना रकम अलग रख रहे हो। अब क्रेडिट कहाँ करेंगे ये 5,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, तो इसका नाम है बैड डेट रिजर्व। Because it's a provision. ठीक है, तो एंट्री समझ में आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। इसके दो इफेक्ट ले लें दोस्तों हम। तो पहली इफेक्ट ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दोस्तों उसकी दूसरी इफेक्ट बैड डेट रिजर्व कहाँ आएगा, ऑन असेट साइड डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। अब दोस्तों आइडियली देखो आप ध्यान से, तो टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, मतलब इस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस तो सारी कहाँ आती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आती है। बट हम उसको लायबिलिटी साइड न दिखाएं और मुझे उसको असेट साइड ही दिखाना हो, तो असेट साइड मतलब ऑपोजिट साइड गया, तो मुझे क्या करके दिखाना होगा, माइनस करके दिखाना होगा। तो आई विल डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, बट याद रखें डेटर्स आर नॉट रिड्यूसिंग। तो सर हम बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि बैलेंस शीट का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है कि वो हमें सच्ची स्थिति का दर्शन कराए। इट शोज अस द करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटस। तो अगर ये बैड डेट जो रिजर्व रखा है उतनी भी आने वाले समय में बैड डेट हो गई तो हमें इतना पैसा तो मिलेगा ही। ये स्थिति जानने के लिए हम डेटर्स में से माइनस करके दिखाते हैं, एक्चुअली डेटर्स रिड्यूस नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आई एम पासिंग थ्रू, ओके, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल लर्निंग। ऑलराइट, तो आई विश दैट के बैड डेट रिजर्व आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसकी प्रेजेंटेशन प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होती है उसको समझें, और फिर उसकी प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे होती है उसको भी समझें, ताकि नॉर्मली ये 12th में समझाना नहीं रहता है दोस्तों, बट 11th में कई बच्चों ने प्रिपरेशन के समय ध्यान दिया होगा, कई बच्चों ने ऐसा सोचा होगा कि फाइनल एग्जामिनेशन आएगी तब हम प्रिपेयर करेंगे, और फाइनल एग्जामिनेशन ऐसे हालात में हो नहीं सकी, तो शायद हमारा स्टडी करना भी छूट गया हो, इसलिए मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना चाहिए, आपको एक टेबल बनाना चाहिए, टाइटल आएगा टू बैड डेट रिजर्व। डेबिट साइड है क्या। अब ये टेबल कैसे बनेगा, बैड डेट्स
of trial balance plus bad debts of adjustment plus bad debt reserve of adjustment minus bad debt reserve of trial balance. अब दोस्तों इसके बारे में एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूं. द स्पेशल इंस्ट्रक्शन इज व्हेन टू जनरेट दिस टेबल ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दो ही चीज याद रखो. इफ यू आर गिवन बैड डेट रिजर्व इन एडजस्टमेंट एंड यू आर गिवन बैड डेट रिजर्व इन ट्रायल बैलेंस, देन एंड देन इट इज रिक्वायर्ड. क्योंकि नई प्रोविजन कर रहे हो तो पुरानी प्रोविजन क्या करो, कैंसिल करो. भाई स्टोर रूम में 25 किलोग्राम गेहूं पड़े हैं, अब नई प्रोविजन मुझे 100 किलोग्राम गेहूं करनी है तो मैं 75 किलोग्राम गेहूं अंदर डालूंगा तो ऑटोमेटिकली 100 हो जाएगा. मतलब पुरानी क्या हो गई, कैंसिल, नई प्रोविजन आ गई. मतलब व्हेन यू मेक अ न्यू प्रोविजन कैंसिल द ओल्ड वन, दैट्स व्हाई इट इज डिडक्टेड. अब दोनों में से कोई एक ही दिया है तो इस टेबल की कोई जरूरत है नहीं. बैड डेट्स तो वैसे ही एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट ही आएगा. बैड डेट्स कोई भी हो एक्सपेंस ही है, और बैड डेट रिजर्व की प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस से ही होगी. ये तीन तो डेबिट होने वाले ही हैं. टेबल तब बनाना है जब ये दोनों साथ में हो. आई वंस अगेन कॉन्सेंट्रेट. कोई भी सम में बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट में भी इंस्ट्रक्शन है, बैड डेट रिजर्व की बैलेंस ट्रायल बैलेंस में भी है, तभी ये टेबल बनाओ, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड. बात समझ में आ गई? गुड. हाउ इट विल डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन बैलेंस साइड. ओके, तो बैलेंस शीट में असेट साइड डेटर्स आएंगे, उसमें से बैड डेट्स जो अभी आपने डिसाइड किया एडजस्टमेंट वाली वो माइनस होगी, तो आपको नेट डेटर्स मिलेंगे. इसके ऊपर कुछ परसेंटेज आपको कहा होगा बैड डेट रिजर्व रखें, ये एडजस्टमेंट की माइनस होगी. टोटल डेटर्स जो नेट रिसीवेबल दिख रहे हैं वो बाहर आ जाएंगे. How are you? Very good. तो दोस्तों अगर आपको एकदम फंडामेंटल बेसिक समझाने के बाद भी कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क मी वेरी फ्रीली ऑन माय मोबाइल नंबर 9825225666 पे. आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. दिन में ऑलमोस्ट 1 या 2 बार मैं व्हाट्सएप के ऊपर सारे अपने व्हाट्सएप चेक करता हूँ थ्रू माय कंप्यूटर, तो आई कैन आंसर यू वेल, राइट. बट अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, मैं एकदम ध्यान से पढ़ा रहा हूँ, आपने उतने ही ध्यान से पढ़ा है, तो मुझे इतना विश्वास है डाउट जनरेट ही नहीं होगा. 1 मिनट बुक में लिख लो, फिर लास्ट एडजस्टमेंट लेते हैं आज के पीरियड का. ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं द 11th वन. इसके जैसा ही है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट अगेन वेरी नाइसली. Discount reserve on debtors. अब दोस्तों आउट ऑफ योर डेटर्स, जो साल के अंत में आपके डेटर्स हैं, उसमें से जो डेटर्स आपको आने वाले समय में आपने जो समय उसको दिया है, वॉट एवर द टाइम यू हैव गिवन टू देम, उस टाइम फ्रेम में वो पेमेंट कर देते हैं, तो एज पर
timely payment, whatever the cash discount you have decided, you have to allow that. Am I clear? तो ये डिस्काउंट आपको टाइम सर वो पेमेंट करेंगे तो देना है. That is your futuristic expense. And as per the principle of wisdom, आपको जो futuristic expense है या लॉस है, उसके लिए वर्तमान समय में जो भी आपका प्रॉफिट है उसमें से उतना हिस्सा साइड में रख देना चाहिए. यू हैव टू कीप असाइड इतना हिस्सा. जो डिस्काउंट देने वाला हिस्सा मैं प्रॉफिट में से अलग रखूंगा तो प्रॉफिट विल रिड्यूस. सो फर्स्ट इफेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट because it's a profit reduces, yeah, and credit to the name of provision. अब समझ गए होंगे आप. डिस्काउंट रिजर्व ऑन debtors account credit because it's a provision. बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों. फर्स्ट इफेक्ट ऑन डेबिट साइड of profit and loss account, and second effect, it is on asset side, deduct from debtors because this is the provision on debtors. ठीक है, लिख लिया? Yes. अब हम समझेंगे दोस्तों how it will be demonstrated on debit side of profit and loss account. ध्यान से समझिए प्लीज. यहां डेबिट साइड पे आपको एक टेबल बनाना है. नाम टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स. ये टेबल का नाम रहेगा. इसमें फर्स्ट डिस्काउंट अलाउड plus discount reserve given in adjustment and minus discount reserve given in trial balance. Net effect here. फिर से ये टेबल हमें कब कंस्ट्रक्ट करना है? जब डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट में भी इंस्ट्रक्शन हो एंड ट्रायल बैलेंस में भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन मतलब बैलेंस दी हो. अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, गुड. हाउ इट विल अपीयर इन बैलेंस शीट? असेट साइड पहले हम डेटर्स दिखाएंगे. ध्यान से समझिए एकदम. माइनस बैड डेट्स ऑफ एडजस्टमेंट, फिर माइनस पीडीआर ऑफ एडजस्टमेंट, इसके ऊपर कंप्यूट करके अब जो हमारे पास नेट डेटर्स आए उसके ऊपर हमें डिस्काउंट रिजर्व कंप्यूट करना है इसके ऊपर, और फिर इसमें से माइनस करना है. तो दिस विल अपीयर आउटसाइड. मतलब इतने डेटर्स में से ये हमारा बैड डेट था, हमने राइट ऑफ किया. नेट डेटर्स मिल गए, उसमें से ये डाउटफुल था, वो भी माइनस कर दिया. इसमें से शायद इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा, वो भी माइनस कर दिया. तो बाकी की इतनी अमाउंट हमें मिल सकती है. दिस इज आवर फाइनेंशियल स्टेटस शोन बाय बैलेंस शीट. डन. प्लीज डू राइट. So my dear friends, I wish that the adjustments number 8, 9
10 and 11. What we learned today, right? They are definitely a good one. 10 and 11 are very good one. You will revise in homework, and we'll meet in the next period with more adjustments. Till then, take care. Bye bye.